أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. درود پڑھ دیجئے محمد والا. اعزائے گرامی قدر، فضائل اور دلائل محمد وآل محمد علیہ السلام کے عنوان سے ہماری آج کی جو دوسری گفتگو ہے اور جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 26 اور 27 ہے. ارشاد یہ ہو رہا ہے پروردگار اپنی شان اپنی صفت بیان کر رہا ہے کہ عالم الغیب، خدا غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور اس کے غیب پر کسی کو کوئی اطلاع نہیں ہے. اللہ، لیکن کچھ افراد ہیں. وہ کون ہیں؟ الا من ارتضی من رسول، جو خدا کے بھیجے ہوئے میں سے مرتضی بنائے گئے ہوں، اس کے غیب پر اطلاع رکھتے ہیں. اور ایسی بات ہے کہ یہاں پر مرتضی کا مطلب صرف حضرت علی مرتضی نہیں، بلکہ جو خدا کے فیصلوں سے راضی ہے اور جو ہمارے معصومین علیہ السلام ہیں وہ سب کے سب مرتضی ہیں. یہ سب مرتضی بھی ہیں، مصطفیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں. اسی لیے روایت یہ ملتی ہے کہ قاسم بن علاء آذربائجانی، یعنی آذربائجان کا ایک شخص تھا جو 10ویں سرکار، 11ویں سرکار اور 12ویں امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے زمانے میں رہ رہا تھا. اور تینوں اماموں کا بہت چہیتا، بہت خاص الخاص، بہت بڑا صحابی تھا. امام کی بڑے خط و خطابت اس سے ہوا کرتی تھی. لیکن جب 12ویں سرکار کا زمانہ آیا تو 40 دن ہو گئے اور اسے کوئی خط نہیں ملا تو بڑا بے چین ہوا. اور یہ بھی کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر 40 دنوں تک امام کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا ہو تو انسان بے چین ہو جائے. ہماری تو زندگیاں گزر گئی ہیں، ہمارے تو سال ہا سال گزر گئے ہیں اور کوئی ہمارے اندر اگر تڑپ نہیں ہے تو واقعاً ہم سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے مولا کے محب ہیں. 40 دنوں تک اگر کوئی پیغام نہیں آیا وہ تڑپ گیا، مولا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، آپ نے مجھے اب تک کوئی خط نہیں بھیجا. دل میں سوچ رہا تھا اور ایج بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی. لکھا گیا ہے کہ اس نے 117 سال زندگی گزاری ہے، تو بہت طویل عمر آدمی تھا. زندگی کے آخری حصے کے اندر نابینا بھی ہو گیا تھا، تو نابینا بھی ہو گیا ہے اور تڑپ رہا ہے مولا کی محبت میں. اچانک ایک خط آیا اور جب سرکار کی طرف سے خط آیا خادم نے وہ خط وصول کیا اور آ کر اطلاع دی کہ آپ کے امام کی طرف سے خط آ گیا. خط لیا اور آنکھوں پہ لگایا, اپنے چہرے پر ملا اور مولا کی محبت میں کہا کہ جلدی پڑھ کر سناؤ کہ مولا نے کیا لکھا ہے.
पढ़ना शुरू किया कि मौला ने ये लिखा है, मौला ने वो लिखा है, प्यार की बात, मोहब्बत की बात, विला की बात मौला ने की, सलाम दुआ हुई। उसके बाद एक ऐसे जुमले तक पहुंचा कि खादिम की जबान में जरूरत नहीं हुई कि उसे अदा कर सके। क्या हुआ, आगे खत को क्यों नहीं पढ़ते, क्या लिखा हुआ है उसके अंदर? क्या खत में लिखा यह है कि आपकी मौत 40 दिन के बाद हो जाएगी। क्या कोई बात नहीं, 40 दिन तो बहुत है मेरे लिए। अगर मौला फरमाए कि आज भी मौत हो जाए तो मैं खुशी के साथ मौत को कबूल करूंगा। 40 दिन तो मेरे लिए बहुत हैं। और अजीजों, जब पता चल जाए इंसान को कुछ दिनों के बाद मरने वाला और यकीनी है मौला की तरफ से इत्तला आई हो, तो आमतौर पर इंसान क्या करता है? अपने अमाल को ठीक करने की कोशिश करता है, नमाजों को ठीक करने की कोशिश करता है, हिजाब को ठीक करने की कोशिश करता है, अमाल को सही करने की कोशिश करता है। लेकिन जो वैसे ही खुद ठीक हो, जो वैसे ही मौला का इतना बड़ा सहाबी हो, वो क्या करे? ये हमारे लिए पैगाम है कि जो अपनी जिंदगियों में वैसे ही ठीक है और सही रास्ते पर हैं, सही किरदार के ऊपर हैं, सही अमाल अंजाम दे रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? कहने लगा कि हमारे मोहल्ले में एक दुश्मन अहले बैत रहता है, मैं इस खत के जरिए उसकी इस्लाह करना चाहता हूं। वो हमारे इमाम को नहीं मानता है, ये खत मैं उसके पास लेकर जाता हूं और उसे बताता हूं कि मेरे इमाम ने फरमाया है कि मेरी मौत 40 दिन के बाद आएगी। अगर मेरा इमाम सच्चा इमाम होगा तो यकीन में 40वें दिन मर जाऊंगा, और अगर वो मेरा इमाम मौत और जिंदगी की खबर दे सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि वाकई वो जिंदगी और मौत का इमाम है, वो इमाम अल इंस वल जान है, इसलिए उसकी पैरवी करना जरूरी है। उस नासिबी को बुलाया गया, दुश्मन अहले बैत को बुलाया गया, आया क्या बात है? क्या मेरे मौला ने मुझे खबर दी है मेरी मौत 40 दिन के बाद हो जाएगी। नासमी ने जैसे सुना कहा कि नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह, तब ये तो ऊपर गिरा ना गुजरे। कहने लगा कि तेरा मौला झूठा है। क्यों झूठा है? क्योंकि कुरान कह रहा है, कुरान ने कहा है कि किसी की मौत को किसी को कोई इत्तला नहीं है। और सूरह जिन की आयत ही की तिलावत की, सूरह जिन की 26वीं और 27वीं आयत की मैंने आपकी खिदमत में तिलावत की, लेकिन 25वीं आयत में परवरदिगार ये इरशाद फरमा रहा है कि किसी की मौत को किसी को इत्तला नहीं है कि वो कब आएगी, जल्दी आएगी या देर से आएगी। उस नासिबी ने इस आयत को पढ़ा, जैसे इस आयत को पढ़ा वो मुहिब अहले बैत कहने लगा आगे भी तो पढ़, आगे भी तो पढ़ के क्या लिखा है उसी कुरान में, उसी सूरे में आगे लिखा है कि आलिमुल गैब वला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, वो जात आलिम गैब है, उसको मालूम है कि मौत कब किस वक्त कहां आनी है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उसके गैब की इत्तला है, वो जानते हैं कि दूसरों की मौत कब आनी है और वो इत्तला दे सकते हैं। और अगर मेरी मौत 40वें दिन आ जाए तो जान लेना कि वही मेरा सच्चा इमाम है और वही उन अफराद के अंदर शामिल है जिनको कुरान करीम में कह रहा है कि वो खुदा के भेजे हुए हैं और वो मुर्तजा बनाए गए हैं। देखिए हमारा मसला ये भी है, कभी कभार हम कुल्लियात पर गुफ्तगू करते हैं, कुल्लियात पर जब हम बात कर रहे होते हैं कि हमारा इमाम वो है कि जो आलिम गैब है, हमारा इमाम वो है जो शुजा है, हमारा इमाम वो है जो सखी है, हमारा इमाम वो है जो सबसे बड़ा आलिम है, तो दूसरे भी यही कहते हैं कि हमारा इमाम भी वही है जो आलिम है, हमारा इमाम भी वही है जो शुजा है, हमारा इमाम भी वही है जो इल्म गैब जानने वाला है। तो कुल्लियात पर गुफ्तगू ना करें, ये सवाल करें कि अगर वो वाक़ई आलिम गैब है तो जरा तारीख की किताबों से दिखाए तो सही कि उन्होंने कौन सा गैब का फैसला किया। अगर वो वाक़ई शुजा है तो किसी मैदान जंग में बताएं कि कितने काफिरों को वासिले जहन्नम किया। कुल्लियात पर बात ना करे, जुज़ियात पर गुफ्तगू करे। अगर वो वाक़ई शुजा हैं तो फिर दिखाएं कि कितने लोगों को उन्होंने वासिले जहन्नम किया। अगर वो वाक़ई आलिम हैं तो बताएं कितने सवालात के उन्होंने जवाब दिए। ये कहता है कि मेरा मौला लेकिन है जो 40वें दिन उसने कहा है कि मेरी मौत आ जाएगी, अगर 40वें दिन आ गई इसका मतलब मेरा मौला सच्चा है। और जैसे ही 40वां दिन करीब आया इसकी तबीयत बिगड़ने लगी, बुखार आने लगा और इतना शदीद बुखार आ गया कि आखिरी दिन कहने लगा कि अब रसूलुल्लाह आ गए, अब अली मुर्तजा आ गए, अब इमाम हसन आ गए, अब इमाम हुसैन आ गए। और जैसे ही 40वें दिन की फजर तुलू हुई उसके घर से जनाजा निकला।
इस मुहिब्बे अहले बैत की रूह तो परवास कर गई, लेकिन इसने जो दुश्मने अली, दुश्मने अहले बैत को बताया था कि मेरे मौला ने खबर दी है कि आज के दिन मेरी मौत हो जाएगी, इसकी रूह यहां से परवास की और मुहिब्बे अहले बैत की रूह दुश्मने अहले बैत के अंदर दाखिल हो गई। और दुश्मने अहले बैत की ज़बान से जुमला निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि तू जिन हस्तियों को मानता है वही सच्ची हस्ती है। मिलके जरा दुरूद पढ़ दीजिए ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनके मानने वाले हैं उन्होंने बेशुमार वाक़यात में बयान किया है कि गैब की खबरें दी हैं, गैब की इत्तला दी है। और गैब की खबरें देने वाला और इल्म रखने वाले का जिक्र खुद कुरान करीम के अंदर भी आया है। कुरान करीम की कुछ आयतें वो है जो हमारे शायद बच्चे को याद है, मैं इसलिए उनको तकरार नहीं करना चाहता, सिर्फ मफहूम पेश करना चाह रहा हूँ, नुक्ते की दरवाना चाह रहा हूँ। हजरत सुलेमान का दरबार सजा हुआ है, वाक़े तक आप खुद पहुंच गए होंगे, मैं सिर्फ उस नुक्ते तक ले जाना चाह रहा हूं। दरबार सजा हुआ है, सूरह नमल की आयत नंबर 38 से लेकर 40 तक में वाक़े मौजूद है, जिस हिस्से को मैं पेश कर रहा हूं। दरबारियों से कहा, कौन है तुम में से जो तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हाजिर करे? काला इफरीतुम मिनल जिन, इन दरबारियों में से एक जिन भी था जो इफरीत था, यानी बहुत ताकतवर था। उस जिन ने कहा, अना आती कभी ही, मैं लेकर आऊंगा, कबल अन तकूम मकामिक, ए सुलेमान नबी, कबल इसके कि आप अपने मकाम से खड़े हों वो आपके पास हाजिर हो जाएगा। सुलेमान नबी कहने लगे, बहुत देर है, किसी के पास और ताकत है जो जरा जल्दी लेकर आए। तो कुरान ये कहता है, कुरान की आयत पेश कर रहा हूं, सूरह नमल आयत नंबर 40, इरशाद होता है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक ऐसा भी दरबार के अंदर मौजूद था जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। तो उसने कहा कि अना आती कभी कबल अयरतद इलैका तरफुक, मैं कबल इसके कि आपकी पलकें झपके हाजिर कर दूंगा। और जैसा कहा था वैसा कर भी दिया। पहले तो मैं सुलेमान नबी से कहूंगा, ए सुलेमान आप तो नबी खुदा हैं, अगर हाजिर ही करवाना था तो अल्लाह को कहते, अल्लाह से मदद मांगते, या अल्लाह वो हाजिर करते। आपने दरबारियों से मदद क्यों मांगी? हजरत सुलेमान ने बता दिया, अल्लाह से जिस तरीके से मांगना सही है, इसी तरीके से अल्लाह वालों से मांगना भी सही है। क्या तुम में से कौन ऐसा है जो ये काम करे? और किसी ने कहा कि मैं करने के लिए तैयार हूं, पलक झपकने से पहले हाजिर कर दूंगा, और हाजिर करके बता भी दिया। हाजिर हो गया तख्ते बिल्कीस। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ, और ये सवाल तारीख की किताबों में मौजूद है। बहुत बड़े दानिश्वर याहिया इब्ने अक्सम ने जनाब मूसा मुबरका से सवाल किया था। याहिया इब्ने अक्सम का नाम शायद आपने सुना हो, नवे सरकार के गुफ्तगू के अंदर आता है। जब नवे सरकार बहुत कमसिनी के आलम में थे तो याहिया इब्ने अक्सम को दरबार में लाया गया था, और बड़े बड़े भी अबू तालिब के बच्चों का मुकाबला नहीं कर सके। किसी ने क्या खूब कहा था, बल्कि रेहान आजमी साहब का ये शेर है, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। कहते हैं कि मिदहत अली नकी की मुकद्दर की बात है, मिदहत अली नकी की मुकद्दर की बात है, कतरे के लब पे आज समंदर की बात है, कतरे के लब पे आज समंदर की बात है। सीरत इन्हीं की सारी हसन अस्करी में थी, मंजर की बात में पस मंजर की बात है। तो या अबू तालिब, या अबू तालिब की औलाद हैं जो बचपने में बड़े बड़ों को खामोश करवाते हैं। तो याहिया इब्ने अक्सम के सामने इमाम तकी ने खामोश करवाया था, और इसके बाद इमाम तकी के जमाने के बाद भी याहिया इब्ने अक्सम जिंदा रहा। तो उससे सवाल किया मूसा मुबरका से। मूसा मुबरका कौन है? ये इमाम तकी ही के फर्जंद होते हैं, सगे बेटे हैं जनाब मूसा मुबरका बिन इमाम तकी अलैहिस्सलाम। उनसे सवाल किया। सवाल क्या किया? का कुरान तो ये कह रहा है कि सुलेमान के जब दरबार सजा हुआ था तो उन्होंने दरबारियों से सवाल किया था कि तुम में से कौन ऐसा है कि जो तख्ते बिल्कीस को हाजिर करे। मेरा सवाल ये कि जो दरबारी के पास इल्म मौजूद है, क्या वो इल्म खुद सुलेमान के पास नहीं है?
और अगर खुद सुलेमान के पास वो इल्म है तो जब खुद वो काम कर सकते हैं तो दरबारियों से मांगने की जरूरत क्या है? और अगर नहीं है और दरबारियों के पास वो इल्म मौजूद है, इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद नबी बने बैठे हैं, इनके जमाने में एक इनसे बड़ा आलिम है। ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब यही इब्न हसन भी जानता है कि जो हुज्जत खुदा होता है वो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम होता है। कब इस गुत्थी को हल करवाइए। या तो सुलेमान के पास वो इल्म है, अगर इल्म है तो सवाल करने की जरूरत नहीं है। अगर इल्म नहीं है तो इसका मतलब खुद का इल्म कम है, दरबारी का इल्म ज्यादा है, तो फिर नबी उसे होना चाहिए, नहीं कि सुलेमान नबी को होना चाहिए। इसका जवाब क्या है? मूसा मबरका कहते हैं कि मैं इस जमाने की हुज्जत नहीं हूं, बल्कि जमाने की हुज्जत मेरे भाई इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और यही फर्क है यूसुफ के भाइयों में, इमाम और इमाम अली नक़ी के भाई में। वो यूसुफ के भाई थे जो कहते थे कि जो मकाम यूसुफ को मिला है वो हमें मिल जाए, और ये मूसा मबरका है जो जानते हैं कि जो मुझे ओहदा नहीं मिला है मुझे उसी पर राजी रहना है, जो मेरे भाई को ओहदा मिला है वो मुझे उसी की इताअत करनी है। अपने भाई इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को खत लिखा, इमाम नक़ी अलैहिस्सलाम का जवाब आया। फरमाया इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ने का सुलेमान नबी का इल्म ज्यादा था और वो जानते थे कि किस तरीके से तख्ते बिल्कीस को पलक झपकने से पहले हाजिर करें। तब ये सवाल पैदा हुआ कि फिर क्यों उन्होंने दरबारियों से सवाल किया? क्या इसका जवाब ये है कि दरबारियों से ये सवाल इसलिए किया ताकि दरबारी भी जान लें कि मेरे इल्म रखने के बाद जो सबसे ज्यादा इल्म रखता है वो तुम में से कौन है, मेरे बाद तुम सब में सबसे बड़ा आलिम कौन है, ताकि दरबारी जान ले, कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि सुलेमान के बाद मैं सबसे बड़ा था, सुलेमान के बाद मैं हकदार था, मुझे ओहदा मिलना चाहिए, मुझे खिलाफत मिलनी चाहिए। दरबारियों को सबको समझ में आ जाए मेरे चले जाने के बाद सबसे बड़ा आलिम आसिफ बिन बरखिया है। इसलिए सवाल किया, इसलिए आसिफ बिन बरखिया को आगे भेजा, इसलिए आसिफ बिन बरखिया को कहा कि तख्ते बिल्कीस को लेकर आए। अब हमें समझ में आया कि नबी हर जंग में अली को आगे क्यों भेजते थे। क्या खुद के पास शुजाअत नहीं थी? क्या खुद के पास ताकत नहीं थी? क्या खुद वासिले जहन्नम नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन अली को भेजकर बताते थे मेरे बाद जो सबसे ज्यादा शुजा है वो अली इब्न अबी तालिब। ताकि कोई नबी के बाद न कहे कि मैं सबसे बड़ा शुजा था। नबी ने अपनी जिंदगी ही में फैसला कर दिया मेरे बाद जो सबसे बड़ा दिलेर और शुजा और बहादुर है वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। तो हमारे आइम्मा सलाम वो हैं कि बड़े बड़े मुश्किल मसाइल को उन्होंने बहुत आसानी के साथ, बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ हल फरमाया है। लेकिन सिर्फ हमारे आइम्मा आलिम नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। दुनिया के उलमा में, दुनिया के टीचर्स में, दुनिया के पढ़ाने वालों में और हमारे इमाम में फर्क है। फर्क क्या है? अगर फर्ज कीजिए कि हमारे बच्चे ने एक ट्यूटर रखा है, हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा है, फीस दी हमने, वो आकर मैथ्स पढ़ाता है। हमारा बच्चा जब उसके पास मैथ्स पढ़ रहा है तो ट्यूटर को इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो मैथ्स पढ़ते पढ़ते अपनी जबान से गालियां दे रहा है या अपनी जबान से जिक्र इलाही कर रहा है। ठीक है, ट्यूटर को तो फर्क नहीं पड़ेगा। ट्यूटर तो आया मैथ्स सिखाने के लिए, वो देख रहा है कि रियाजी सही तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, बच्चा सही तरीके से सीख रहा है। उसके बाद हमें परवाह नहीं है कि इसका बच्चा गालियां देता है या जिक्र इलाही करता है, परवाह नहीं है। ये फर्क है दुनिया के पढ़ाने वालों में और खुदा की तरफ से भेजे हुए बंदों में। जो खुदा की तरफ से भेजे गए हैं वो सिर्फ ये नहीं चाहते कि आप इल्म हासिल कर लें और आपको इल्म दे दें, बल्कि इल्म के साथ साथ वो तरबियत भी चाहते हैं। और ये तरबियत कौन देता है? ट्यूटर आकर तालीम देता है, लेकिन माँ बाप वो होते हैं जो अपनी औलाद की तरबियत करते हैं। फर्क क्या है दोनों में? वो भी आकर तालीम दे रहा है, माँ बाप भी जाहिरी तौर पर तालीम दे रहे हैं। नहीं अजीजों, बहुत नाजुक मरला है, इस फर्क को समझिएगा। ट्यूटर की तरबियत करने में, उसकी तालीम देने में और माँ बाप की तालीम और तरबियत देने में फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो हमारा बच्चा ट्यूटर के सामने जाकर पढ़ रहा है वो ट्यूटर का बच्चा नहीं है।
वो हमारा बच्चा है, इसलिए अगर वो कोई गलत काम करेगा तो हमारा दिल पसीजेगा, हमारा दिल टूटेगा, हम चाहेंगे कि उसकी इस्लाह करें। ट्यूटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से मासूमीन के जो मानने वाले हैं, मासूमीन जिनकी हिदायत करने के लिए आए हैं, मासूमीन जिन इंसानों को इस्लाह के रास्ते पर लेने के लिए आए हैं, अगर उनसे कोई गलती होती है तो ऐसे ही इनका दिल टूटता है जैसे बाप का दिल अपनी औलाद के लिए टूटता। अब वो हदीस सुनिएगा कि नबी अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया था, अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। बाप वो होता है जो अपने बच्चों को गिरता हुआ नहीं देख सकता। बाप वो होता है जो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। बाप वो होता है जो अपने बच्चे को गुमराह नहीं देख सकता। और अगर कहीं पर कोई कोताही करता हुआ नजर आ जाता है तो चाहे खुद भूखा रह ले लेकिन अपने बच्चे को बचाता है, अपने बच्चे को जिंदा रखता है। इसीलिए कुरान की बहुत सी आयतें आपको मिलेंगी कि अहले बैत घर में खुद खाने के लिए कुछ नहीं था लेकिन गरीबों को खाना खिलाया। हम टेलीविजन पर मौजूद थे, अब एक आयत ऐसी है जो हमारे बच्चे को मालूम है कि अहले बैत की शान में है, लेकिन टीवी पर आने वाले मौलवियों की हालत देखिए। शायद 19 रमजान की तारीख थी या 21 रमजान की तारीख थी। हर प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हर चैनल जो मजहबी प्रोग्राम होता है उसको शुरू करने से पहले कुरान करीम की आयतों की तिलावत करते हैं। तो चूंकि वो 19 या 21 रमजान थी तो उन्होंने इंतखाब किया सूरह दहर का। सही है, सूरह दहर तक पहुंच गए। जब सूरह दहर का इंतखाब किया, हम उस वक्त तक आए नहीं थे, वो सुन्नी मुफ्ती आए हुए थे, उनसे सवाल किया ये सूरह दहर मौला अली की शान में उतरा है ना? कहने लगे कि नहीं, पता नहीं, शायद ये इख्तिलाफी मौजू है, इसको छोड़ दें आप। और उन्होंने सूरह दहर की तिलावत नहीं की, ये सोच के कि हो सकता है कि किसी और सहाबी के लिए उतरा हुआ हो, हम ये समझ के कि मौला अली के लिए उतरा है, हम पढ़ दें। जब हम वहां पर आए और पहुंचे तो जो होस्ट थे उन्होंने ऑफ द एयर हमसे पूछा कि अभी हमने मालूम किया था मुफ्ती साहब से कि सूरह दहर अहले बैत की शान में मौला अली की शान में उतरा या नहीं उतरा। तो उन्होंने कहा कि इख्तिलाफी मौजू है, इसको ना पढ़ें। मैंने कहा कौन सा इख्तिलाफी मौजू है? कई कह रहे हैं कि कुछ रिवायतें कहती हैं कि अहले बैत की शान में, कुछ रिवायतें कहती हैं किसी और की शान में। मैंने कहा कोई एक झूठी से झूठी रिवायत भी दिखाइए जिसमें यह बयान किया गया हो कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, अहले बैत के अलावा किसी और की शान। जब बड़े बड़े उलमा की हालत है तो उनकी आवाम की हालत क्या होगी? इसलिए आप ये ज्यादा तवक्को ना रखें कि अहले बैत की इनको इतनी ज्यादा मालूमात क्यों नहीं है। जब बड़ों को मालूमात नहीं है तो छोटों को कहां से मालूमात होगी? तो बहुत सी आयतें क्या है वो बता रही है कि अहले बैत भूखे रहते हैं लेकिन किसी और को भूखा नहीं देखते हैं। यह है अहले बैत। क्यों? क्योंकि ये बाप है। बाप खुद भूखा रहता है लेकिन अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता, अपनी औलाद को भूखा नहीं देख सकता। अजीजों, इस तड़प को महसूस कीजिए। हमारे लिए मौला इस तरह से तड़पते हैं। अगर कहीं इंसान थोड़े से गुमराही के रास्ते पर चला जाए, ऐसे तड़पते हैं जैसे एक बाप दर्द रखता है। बल्कि बाप को दर्द कम होता है, माँ को जैसे दर्द होता है, बल्कि माँ को भी दर्द कम होता है। 70 माओं से ज्यादा दर्द हमारे जमाने के इमाम को होता है। और अगर एक कदम हम नेकी का आगे बढ़ाएं, इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी, इतनी लज्जत हमारे इमाम को मिलती है कि जैसी खुशी एक माँ को मिलती है अपनी औलाद को सही रास्ते पर देखकर। मैं दोनों मिसाल आपकी खिदमत में बयान करूं। छठे सरकार हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का जमाना है। इमाम के चाहने वाला मौला की खिदमत में हाजिर हुआ। मौला ने फरमाया कि तूने अच्छी हरकत नहीं की। कहा कि मौला मैंने क्या किया? कहा याद कर वो वक्त जब तू हज से वापस आ रहा था तो जौफा के मकाम पर एक शख्स ने तुझे आवाज दी कि मुझे भी ऊंट पर सवार करवा दे। तूने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया और उसे सवार करवाए बगैर आगे चला गया, जबकि वो हमारा चाहने वाला था और मुझे मालूम है कि तुझे भी पता था वो हमारा मानने वाला है। फिर भी अपने साथ उसे सवार नहीं करवाया, जबकि उस वक्त धूप बहुत ज्यादा थी, तेरे पास वक्त भी मौजूद था।
तू सवार करवा भी सकता था, फिर भी नहीं करवाया। याद रख, तूने अगर उसको धुतकारा है तो गोया ऐसे जैसे मुझे धुतकारा है। जैसे बाप अपनी औलाद के लिए तड़पता है ना, मौला इस तरीके से अपने मानने वालों के लिए तड़पते हैं। अगर एक मानने वाले की मदद नहीं की है, गोया ऐसे ही कि जैसे इमाम की अपनी औलाद की मदद हमने नहीं की, इस तरह से मौला तड़पते हैं। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि कराची में आप हर एक को अपनी गाड़ी में सवार करवा दें, क्योंकि हालात यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन जिसको इंसान जानता हो गई अपना, जिसकी शनाख्त हो, जिसकी पहचान हो कि ये कौन है, ठीक बंदा है या नहीं है, जिसको अपनी गाड़ी में सवार किया जाए, अगर इंसान को एक नेकी का अमल अंजाम देता है, मौला को बहुत पसंद आता है। दूसरी मिसाल हमारे दूसरे सरकार हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के जमाने में इमाम रास्ते से गुजर रहे थे, देखा एक शख्स है जो खुद भी खाना खा रहा है और जानवर को भी खाना खिला रहा है। वो कुत्ता था जिसको खाना खिला रहा है, खाना खिला रहा है, खुद भी खा रहा है, उसको भी खिला रहा है। इमाम उसके करीब आए, कहा कि तू कौन है? कहा कि मैं फला यहूदी उसका गुलाम हूं। कहा चलो फिर चलते हैं तुम्हारे आका के पास। मौला उस यहूदी के बाग तक पहुंच गए और उस बाग तक पहुंचने के बाद कहा कि क्या ये तेरा गुलाम है? कहा कि हाँ मौला ये मेरा गुलाम है, और आपको मैं जानता हूं कि आप नवाज़े रसूल हैं, आप सरकार इमाम हसन हैं, मैं जानता हूं आपको। इमाम ने फरमाया कि अगर ये तेरा नेक सा गुलाम है जो इतना खूबसूरत काम करने वाला है कि एक जानवर की भी भूख का ख्याल लगता है, मैं चाहता हूं कि इस गुलाम को खुद खरीद लूं। यहूदी कहने लगा, अब यहूदी भी मुसलमानों से बाज अच्छे भी गुजरे हैं यहूदी कहने लगा कि ए हसन मुश्तबा, आपके तशरीफ आवरी और आपके कदमों के सदक़े में मैंने ये गुलाम आपको वैसे ही हदिया कर दिया। इमाम ने फरमाया कि अच्छा जो इसके वसाइल हैं, जो इसके दिरहम और दीनार हैं, मैं वो भी खरीदना चाहता हूं ताकि वो भी मैं उसको दे दूं। कहने लगा कि आपने बस तकाजा किया, मैंने आपके हर्फ के पास रखा है और ये मैं भी सारी चीजें आपको दे देता हूं। वो भी इमाम के हवाले कर दिए। जब इमाम ये सारी चीजें लेकर निकलने लगे तो अब ये गुलाम भी इमाम का है, जो माल मिल गया वो भी इमाम का माल है। जब इमाम जाने लगे तो जाते जाते कहने लगे, ए यहूदी, जब तू इसे आजाद कर सकता है तो मैं इसे क्यों अपना गुलाम बनाकर रखूं? मैंने भी इसे अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया और ये माल जो तूने मुझे दिया है वो भी मैंने इसके हवाले कर दिया। इस पूरे मंजर को यहूदी की बीवी देख रही थी। यहूदी की बीवी ने जब इमाम हसन का ये किरदार देखा, फौरन से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इस्लाम को कबूल करती हूँ, मैं हसन मुश्तबा के मानने वाली बनती हूँ। जैसे ही बीवी ने कहा, शौहर की ज़बान से भी निकला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही उसने भी कलमा पढ़ा, गुलाम की ज़बान बेज़बानी से निकला, ये माल कितना अजीब माल था, इस माल की वजह से मैं भी आजाद हो गया और ये यहूदी भी मुसलमान हो गई और इसका शौहर भी मुसलमान। कितना छोटा सा अमल था, इंसान को, इमाम को कितना पसंद आता है, सिर्फ एक जानवर को खाना खिलाया। अगर छोटी छोटी नेकियां भी इंसान करता है, इमाम को ऐसे खुशी मिलती है जैसे एक बाप को खुशी मिलती है अपनी औलाद की। आज की रात अगर कोई नमाज शब पढ़ता है, ये ना समझे कि मैंने नमाज शब पढ़ ली, पता नहीं इसका सवाब मुझे आखिरत में मिलेगा, कब मिलेगा। नहीं, इमाम वक्त अभी आपसे खुश होते हैं, अभी अभी आपसे राजी है, अभी अभी वो मुस्कुराते हैं, मेरा चाहने वाला कितना अच्छा हो गया। एक मर्ज तकलीफ थे कुम के अंदर, वो दर्स दे रहे थे, बहुत बड़े मर्जे, बहुत बड़े आयतुल्ला। जुमेरात के दिन आया, दर्स से खारिज में अपने शागिर्दों से उन्होंने कहा कि रात शब जुमा आने वाली है, मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम सब कोशिश करो कि ज़ियारत बीबी मासूमा कुम पर जाओ, सलाम पेश करो, ज़ियारत पढ़ो। अच्छा, ईरान के अंदर जुमे का दिन फिर छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी का दिन गुजर गया, हफ्ते का दिन आया। जब हफ्ते का दिन आया, वो मर्ज दोबारा से मिंबर पर आए, दर्स शुरू किया, लेकिन दर्स शुरू करने से पहले कहा कि मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम सब ज़ियारत बीबी मासूमा कुम पर गए थे, और मैं सिर्फ अपनी जानिब से शुक्रिया अदा नहीं करता, बल्कि जब तुम सबने ज़ियारत कर ली तो रात में बीबी मेरे ख्वाब में आई
और उन्होंने फरमाया कि तेरा शुक्रिया कि तूने रागिब किया इनको मेरी ज़ियारत पर, और ये भी कह देना कि इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूं जो मेरी ज़ियारत पर आई। जब इंसान नेक अमल अंजाम दे रहा होता है उसी वक्त मासूम आपका शुक्रिया अदा करता है। जैसे एक बाप को खुशी होती है अपने बच्चे को पहला नंबर आता हुआ देख, अपने बेटे को कामयाब होता हुआ देखकर, इसी तरीके से इमाम मासूम को खुशी होती है। सही। अब आइए दूसरी मंजिल पर। कभी कभार बाप देखता है कि बच्चा बहुत ज्यादा नाफरमान हो गया है, गलत रास्ते पर चला गया है, फिर बाप को गुस्सा भी आता है। लेकिन गुस्सा आने का यह मतलब नहीं कि अब ये बाप नहीं रहा, अब इसके अंदर मोहब्बत खत्म हो गई, ये एक्सपायर हो गया है। नहीं, अभी भी है बाप। ये जो गुस्सा आया है अपनी औलाद पर, ये भी बाप को इस वजह से आया है क्योंकि बाप चाहता है कि मेरी औलाद और तरक्की करे। मैं गुस्सा इसलिए कर रहा हूं, मैं डांट इसलिए रहा हूं कि गलत रास्ते पर मेरा बच्चा जा रहा है, गलत सोबत में जा रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, अपना वक्त जाया कर रहा है। मैं डांट इसलिए रहा हूं, गुस्सा इसलिए कर रहा हूं ताकि ये सही रास्ते पर आ जाए, और मैं देखना चाहता हूं कि ये तरक्की करे। कभी कभार आपको मासूमीन की जिंदगी में भी मिलेगा कि मासूमीन अपने मानने वालों पर गजबनाक हो गए, वो हैं गजबनाक, लेकिन इसलिए नहीं कि अब इमाम हमसे मोहब्बत नहीं करते, अभी भी मोहब्बत करते हैं। क्या जनाबे होर को मौला हुसैन ने नहीं फरमाया ए होर तेरी मां तेरे मातम में बैठे? ये क्यों डांट कर कहा था? इसलिए कहा था ताकि एक चिंगारी लग जाए कि मौला ने तो मेरी मां का जिक्र कर दिया है, मैं मौला की मां का जिक्र कैसे करूं? ये चिंगारी लगाई है। तो कभी कभार डांटा जाता है ताकि सही रास्ते की तरफ आए। और कैसा मकाम पाया है जनाबे होर ने। किसी ने क्या खूब कहा था कि फना की आखिरी हद पे खड़ा हुआ था होर, बका की आखिरी हद तक हुसैन ले आए। और ऐसे ले आए कि आज के दौर में बड़े से बड़ा फकीह, बड़े से बड़ा मुजतहिद, बड़े से बड़ा आरिफ भी हो, तब भी होर की जियारत करने के लिए जाता है तो अदब के साथ सीने पर हाथ रख के कहता है, ए होर, जिस तरह से तुमने अपने जमाने के मौला पर अपनी जान निछावर की, काश हम भी होते तो अपनी जान इसी तरीके से निछावर करते। यानी मुजतहिद जिसकी दुनिया तकलीद करती है वो खुद होर की तकलीद करता है। ए होर, जो तुमने काम किया है मैं चाहता हूं मैं भी वही काम कर। यह है जनाब होर का मकाम। मामूली ना समझिएगा, सारी गलतियां की थी, लेकिन एक मौला की जब डांट सुनी तो किस तरीके से इस्लाह के रास्ते पर आए। ये एक वाकया नहीं है, मुताद्दिद वाकया जिस तरह के मौला के मिलते हैं। सातवें सरकार हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर है। थक तो नहीं रहे हैं? बात पहुंच रही है अच्छी तरीके से? सातवें सरकार का जमाना है। मैं शायद नाम लूंगा, बुजुर्गों के ज़हन में तो पूरा वाक़या आ जाएगा। अगर वाक़या आ गया तो आप सलवात पढ़ा दीजिएगा, मैं वाक़या वहीं पर छोड़ दूंगा, दूसरी बात शुरू कर दूंगा। सातवें सरकार का जमाना है। अली इब्न यख्तीन सातवें इमाम से मुलाकात कर आए। सलवात नहीं पढ़ेंगे क्या? वाक़या मालूम है ना? ये मुझे बयान करना पड़ेगा। अली इब्न यकीन, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमारे बाद सामीन सुन चुके हैं, बाद नहीं सुने। बहुत खुलासतन बयान कर रहा हूँ कि अली इब्न यकीन साते सरकार के ज़माने में बहुत जल्लुल क़द्र सहाबी, बहुत ही मुकर्रब मोतबर सहाबी। एक पूरी रिवायत है जिसमें बयान किया गया है कि क़यामत के मैदान में मुनादी आवाज़ देगा, मौला अली के सहाबियों तुम मौला अली के साथ खड़े हो जाओ। तो मीसा में तम्मार आएंगे, मालिक अश्तर आएंगे, मोहम्मद इब्न अबी बकर आएंगे, कुमैल इब्न ज़ियाद नखई आएंगे और मौला अली के साथ खड़े हो जाएंगे। फिर आवाज़ दी जाएगी, इमाम हसन के सहाबियों आ जाओ, इमाम हुसैन के सहाबियों आ जाओ, इमाम सज्जाद के सहाबियों आ जाओ, इमाम बाकर के सहाबियों आ जाओ, इमाम जाफर सादिक के सहाबियों आ जाओ। और जब कहा जाएगा इमाम मूसा काज़िम के सहाबियों तुम आ जाओ, तो अली इब्न यकीन आकर खड़े हो जाएंगे। ये मकाम है अली इब्न यकीन का, कोई मामूली हस्ती नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जब साथ इमाम के बारगाह में हाजिर हुए तो खादिम ने आकर इत्तला दी कि अली इब्न यकीन आए, आने की इजाज़त दे दूं? साथ इमाम ने फरमाया, इनसे कहो कि हमारे पास इनके लिए वक्त नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास।
अली इब्न यकीन को तो पूरी उम्मीद थी, एक जर्रा बराबर 1% भी एहतिमाल नहीं था कि मौला मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं देंगे। खादिम ने आकर कहा कि इमाम अभी मसरूफ है, बाद में आइए। अली इब्न यकीन के लिए बहुत चौंकने वाली बात थी। कुछ देर के बाद दोबारा आ गए, कहा अब इजाजत लेकर हमें अंदर जाने की इजाजत दीजिए। इमाम के पास वो खादिम आया, कहा कि अली इब्न यकीन आए, कहा इनसे कहो कि बाद में आए, हमारे पास वक्त नहीं है। अब अली इब्न यकीन के पैरों तले जमीन निकल गई। मौला ने धुतकार दिया, मुझसे कौन सी गलती हो गई कि मौला को पसंद नहीं आया। मैं सोचते रहे, बहुत सोचते रहे, क्या कज़ा किया है, क्या छोड़ा है, क्या तकलीफ दी है किसी को, समझ में नहीं आ रहा था। बिला आखिर एक मर्तबा खादिम से कहा, बस मेरी एक मुलाकात करा दो, मैं पूछना चाहता हूं मेरी गलती क्या है। ये जज्बा इमाम चाहते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरी गलती क्या है, क्यों मुझे आपकी बारगाह से धुतकारा जा रहा है। आए इसरार के साथ इजाजत मिली, इमाम की खिदमत में हाजिर हुए। इमाम ने फरमाया, याद करो वो वक्त जब एक मेरा मुहिब तेरे पास अपने काम से आया था, तो तूने ये कहा था कि मैं बहुत मसरूफ हूं, बाद में आना। तेरा उसे ये कहना कि मैं बहुत मसरूफ हूं, बाद में आना, ऐसा ही था जैसे तूने मुझे कह दिया। जब तक तू उससे माफी नहीं मांग कर आएगा, उस वक्त तक मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अली इब्न यकीन उसी वक्त निकले, और ये एजाज इमामत था जो अली इब्न यकीन ने दोबारा देखा कि फिर इराक की सरजमीन से, बगदाद की सरजमीन से ऐसे निकले कि 2 ही लम्हे के अंदर मदीना पहुंच गए। और वहां जाकर जिसको नाराज किया था उसको राजी किया, और ऐसा राजी किया कि कहा कि तू अपना पैर, अपना पाय मुबारक मेरे रुखसार पर मल, ताकि ये निशान मैं अपने इमाम के पास लेकर जाऊं कि मैं उससे सच्ची तौबा करके आया। और ये रुखसार पर निशान लेकर इमाम की बारगाह में जब पहुंचा तो क्या देखा कि इमाम खुद दहलीज पर आए हुए हैं, दरवाजा खुला हुआ है, बाहें खुली हुई है, और सीने से लगाकर कहा, ऐसे होते हैं मेरे मानने वाले। तो कभी कभार इमाम डांटते भी हैं, क्यों? जैसे एक बाप डांटता है अपनी औलाद को ताकि ये सही रास्ते पर आए। बाप अपनी औलाद को तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, इमाम अपने हर चाहने वाले को तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। यही मामला 8वें सरकार हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के जमाने में पेश आया। पूरा काफिला आया इमाम की खिदमत में। कभी कभार लोग ये सवाल करते हैं कि मौलाना ही बताइए, हम गए मशहद ज़ियारत करने के लिए, करबला ज़ियारत करने के लिए, क्या हमारी ज़ियारत कबूल हो गई? नहीं हुई। या हमारा अंजाम भी वैसे होगा कि जैसे मौला रजा के जो ज़ाहिर आए थे और काफिले की सूरत में मौला के इमाम ज़ियारत करने के लिए आए थे, मौला ने इन्हें भगा दिया था, ये होगा हमारा अंजाम। मैंने उनको बताया, समझाया कि नहीं, मौला हमें इस तरह से नहीं धुतकारेंगे। क्यों? क्योंकि मौला हमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे एक बाप अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। और मौला ने जो उनको भी धुतकारा है, उनको भी जो डांटा है, वो इसलिए नहीं डांटा कि उन्हें आग कर दिया जाए, आइंदा तुम हमारे पास नहीं आना, बल्कि इसलिए डांटा है ताकि अपनी इस्लाह कर लें और हमारे अच्छे मानने वाले बन जाए। मोहब्बत बाकी है मौला की, जैसे एक बाप की अपनी औलाद से मोहब्बत होती है। आई मौला से मुलाकात करने के लिए, कहा खादिम से, कहा मौला को जाकर कह दें कि आपके शिया आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। खादिम गया अंदर, इमाम रजा को बताया कि आपके शिया आपसे मुलाकात करने के लिए आए। इमाम ने बड़ा सख्त जुमला शाह फरमाया, ये जो आए हैं ये झूठे हैं, इनको कहो पहले झूठ छोड़ दें, फिर आए हमसे मुलाकात करने। ये चले गए। उन्होंने कहा अजीब बात है, मौला ने हमें झूठा कह दिया। अब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब हम सच बोलें, अब हम सही बोलें, हमारी गुफ्तार सही हो। आए थोड़ी देर के बाद दोबारा से, एक ही दिन में 2-2 मरतबा आते थे, सुबह भी आते थे, शाम में भी आते थे। मौला मिलने की इजाजत दे दीजिए, मौला मिलने की इजाजत दे दीजिए। और इस कैफियत को वो अफराद महसूस करेंगे कि जो जाते हैं नजफ में मौला की ज़ियारत करते हैं, साथ साथ आयतुल्लाह सिस्तानी वहां पर मौजूद हैं, कहते हैं कि हम वहां पर भी मुलाकात करना चाहते हैं, आगा सिस्तानी से मुलाकात हो जाए। अगर फर्ज कीजिए आगा सिस्तानी कहें कि हम जो फला काफिला आया है उससे मुलाकात नहीं करेंगे, वो बहुत हराम काम करते हैं, तो इंसान भी ये सोचने में मजबूर हो जाता है आगा सिस्तानी से मुलाकात का शरफ नहीं मिला। आगा सिस्तानी की जबकि कोई हैसियत ही नहीं है मौला मुत्तकियान के सामने। खुद आगा सिस्तानी मौला के फकीरों में से फकीर है, और वही उनके लिए सबसे बड़ा कमाल है।
लेकिन अगर वो भी मिलने से इनकार कर दें तो इंसान ये सोचता है कि आगा सिस्तानी ने मिलने से मना किया है। जरा तसव्वुर करें, मौला रजा ने मना कर दिया, मैं तुमसे मुलाकात नहीं करूंगा। ये दोबारा आए, बड़े मौलाई थे, वापस आए। कुछ ऐसे होते हैं जो बड़ा हिसाब किताब रखते हैं। हम मौला से मिलने के लिए गए थे, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, मौला ने मना कर दिया, हमने कहा ठीक है आमन्ना वसल्लमना, अब हम कभी आपसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। कुछ ऐसे बेनसीब भी होते हैं जो हिसाब किताब से चलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आशिक होते हैं, मौलाई होते हैं। नहीं मौला आपने मिलने नहीं दिया, ऐसा हो नहीं सकता, हमें क्या कमी है, दोबारा मिलने के लिए आएंगे, हम मिलकर रहेंगे। जो इसरार करते हैं मौला हमें मिलना है, आपसे मुलाकात करनी है। कुछ ऐसे होते हैं इमाम ज़माना पर्दे गैब में है, अब पर्दे गैब में वो चलेगा, हमारा क्या कसूर है, हम कैसे मिल सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कहते नहीं मौला पर्दे गैब में है, इतनों से मुलाकात कर ली है, मुझ गरीब से मुलाकात क्यों नहीं की। मौला मुझे मिलना है आपसे, मुलाकात करनी है आपसे, आपने फला को ज़ियारत करवा दी, फला को ज़ियारत करवा दी, मुझे क्यों ज़ियारत नहीं करवाई। तो कुछ मौलाई होते हैं, मुहिब होते हैं, ऐसा पसंद है मौला को। ये रोजाना आते थे, 2 मरतबा आते थे, फजर में भी आते थे, मगरिब पर भी आते थे। मौला मना करते थे, नहीं हमें नहीं मिलना, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, अपनी इस्लाह करो, अपनी इस्लाह करो। आखिरी दिन आ गया इन ज़ायरीन का, आकर खादिम को कहा अब मौला से कहें हम अपने वतन जा रहे, एक ज़ियारत तो करवा दे, एक दीदार तो करवा दे। खादिम जब मौला के पास आया, मौला ने कहा इनके लिए दरवाजा खोल दो। अगर ये मौला ही ना होते तो दरवाजा ना खुलता, थे मुहिब पक्के चाहने वाले थे, इसलिए दरवाजा खुला। आए मौला के हुजूर, मौला ने इन्हें गले लगाया, इन्हें बड़ा प्यार दिया, इन्हें बड़ा सलाम दिया, इनको अपनी जगह पर बैठाया। इन्होंने सवाल किया मौला अब तक तो हमने ऐसा प्यार आपका नहीं देखा था, ऐसी मोहब्बत नहीं देखी थी, आज इतना प्यार क्यों आ रहा है। क्या वजह यह है कि तुम हो हमारे चाहने वाले, तुम हो हमसे मोहब्बत करने वाले, लेकिन जब तुम हमारे दरवाजे पर मुलाकात करने के लिए आते थे तो तुम दावा बहुत बड़ा करते थे। तुम ये दावा करके कहते थे कि हम आपके शिया हैं, शिया और होते हैं और मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं, मुहिब और होते हैं। हदीसे किसा के अंदर भी हम ये कहते हैं वफीहि जमउन मिन शियतिना व मुहिब्बिना, हम हदीसे किसा में भी बताते हैं शिया और होते हैं, मुहिब और होते हैं। मौला ने फरमाया शिया की पहचान सुनो और मुहिब की पहचान सुनो। मुहिब वो होते हैं जो हमसे मोहब्बत तो करते हैं लेकिन जो हम कहते हैं उस पर पूरा अमल नहीं करते, और शिया वो होते हैं जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। अपने आप को अगर तुम मुहिब कहते तो हम दरवाजा खोल देते हैं, लेकिन जब तुमने दावा इतना बड़ा किया है, जब शिया होने का दावा किया है, तो हम चाहते हैं कि तुम शिया बनकर भी दिखाओ। और मौला अगर इनको मिलने नहीं दे रहे हैं, बार बार दरवाजा बंद कर रहे हैं, तभी इनकी इस्लाम मुमकिन थी। तवज्जो रखिएगा, अगर पहली मर्तबा मुलाकात हो जाती तो क्या इस्लाह होती है? आते मुलाकात करते, हाथ चूमते, ज़ियारत करते, चले जाते, जैसे थे वैसे ही रहते। इमाम चाहते हैं कि इनकी तरक्की हो, इमाम इनको कामयाब देखना चाहते हैं, इमाम इनको शिया देखना चाहते हैं, इमाम अपने करीब देखना चाहते हैं, इसलिए पहले बंद करते रहे दरवाजा। और जब आखिरी मौका आया तो ऐसी चिंगारी जलाई कि अब जब तक जिंदा रहेंगे इमाम रजा के फरमान पर अमल करते रहेंगे। मिल के अज़मत इमाम रजा पर दुरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद। बस अजीजों, मौला ये चाहते हैं कि हम अपने मेयार में थोड़ा सा इजाफा करें, और जिस तरह से मौला अपने से मोहब्बत करवाते हैं और अपने से प्यार करवाना चाहते हैं, इसी तरीके से मौला चाहते हैं कि तुम मौला के हर चाहने वाले से मोहब्बत करो, क्योंकि हर चाहने वाले मौला की औलाद है। हम सब अली और नबी की औलाद की तरह हैं। अगर कोई उनकी औलाद से मोहब्बत करता है, उनकी औलाद को कुछ अदा करता है, मौला खुश होते हैं, मौला को खुशी नसीब होती है। थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाइए, जहां जहां इंसान किसी न किसी की मदद कर सकता है, और हर एक किसी न किसी एतबार से परेशान है। कोई यतीम है, कोई बेवा है, किसी को तालीम की जरूरत है, किसी को शादी के लिए जरूरत है। अगर हमने आज मदद की तो गोया ऐसे ही कि जैसे इमाम की औलाद की मदद की। इससे ज्यादा बड़ा मकाम हो नहीं सकता इंसान।
छठे सरकार हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बहुत खूबसूरत सहाबी है, बहुत प्यारा सा सहाबी है, आए इमाम की खिदमत में कहने लगा कि मौला, मैं मदीना में बार बार आपसे ज़ियारत करने के लिए आता हूँ, बार बार आपसे मुलाकात करने के लिए आता हूँ, आप हमेशा मुझे अपने घर में अपने बैतुल शरफ में जगह देते हैं, आप परेशान होते हैं बिला वजह। मैं चाहता हूँ कि कुछ पैसे मैं आपको दे दूं ताकि आप मदीने में मेरे लिए अलग से घर खरीद लें, आप परेशान ना हो। 4000 दीनार, दीनार कहा जाता है सोने के सिक्कों को, हर दीनार को आप कम से कम 10 ग्राम का सिक्का भी समझें तो 4000 10 ग्राम के सिक्के दिए हैं इसने मौला को। क्या मौला ये 4000 दीनार रखिए, मेरे लिए मदीने में एक अच्छा सा घर देख लीजिए ताकि जब मैं मदीना में आऊं तो आपको परेशान ना करूं। इमाम ने वो पैसे रख लिए। अगला साल आया। अब ये मोमिनीन का तरीका था कि जब जब हज के लिए आया करते थे तो मक्के की ज़ियारतें मुकम्मल नहीं होती जब तक मदीने की ज़ियारत ना हो। तो जब जब मक्के की ज़ियारत करने के लिए आते थे हमेशा मक्का से मदीना आते थे। अब जब ये हज करके आया इमाम की खिदमत में मदीना, तो मदीना में इमाम की कदम बोसी की, इमाम से सलाम दुआ की और फौरन से सवाल किया, मौला मेरे लिए कहाँ मकान आपने खरीदा? खरीदा आपने मकान, मिल गया आपको मकान? इमाम का जुमला सुनिएगा। इमाम ने फरमाया, मैंने एक ऐसी जगह तेरे लिए मकान देखा है जिसके बाएं तरफ इमाम हसन है, दाएं तरफ इमाम हुसैन है, आगे आगे रसूल खुदा है, पीछे पीछे अली मुर्तजा है। क्या ये कौन सी जगह है? ये किस शहर के अंदर है? ये किस मोहल्ले में है कि जहां पर हमें ये सारी हस्तियां मिलेंगी? कहा मैंने ये जो घर खरीदा है तेरे लिए वो जन्नत में खरीदा। अच्छा, हमारे लिए तो आसान है वाह वाह कहना, लेकिन जिसके 4000 दीनार चले गए उसके दिल से जरा पूछें कि मौला मैंने तो आपको 4000 दीनार दिए थे ताकि मेरे लिए घर खरीद लें, मैं आपकी ज़ियारत करने के लिए आना चाहता हूं, मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आना चाहता हूं, आपने ये 4000 दीनार का किया क्या? इमाम शाह फरमाते हैं, मैंने तेरे दिए हुए पैसों को औलाद हसन और औलाद हुसैन के ऊपर खर्च कर दिया। जो इनके गरीब थे उनको अमीर बनाया, जो इनके गैर शादीशुदा थे उनको शादी बनाया, जो इनके पढ़े लिखे नहीं हो सके थे उनको पढ़ा लिखा बनाया, उनको तालीम दिलवाई, जो जिसकी जरूरत थी उसको पूरा किया। ये सारे पैसे सादात कराम पर खर्च किए। कहता है कि मौला अगर आपने मेरे लिए घर जन्नत में खरीद लिया है तो मुझे उसकी सनद भी दे दे। हाय हाय हाय, यही तो फर्क है हमारे इमाम में और दूसरों के इमाम में। दिखाओ कोई अपना ऐसा इमाम जो जन्नत की सनद दुनिया में देता हो। इमाम ने उसी वक्त सनद लिखी कि ये जाफर इब्ने मोहम्मद की सनद है फला इब्ने फला के लिए कि मैंने इसके लिए जन्नत में मकान देख लिया है। ये सनद के टुकड़ा दिया और कहा कि ये लेकर जाओ और ये जहां दिखाओगे तुम्हें हर जगह पर इसके खरीदार मिलेंगे। कहता है जब मैं शहर पहुंचा कुछ अरसे के बाद मेरी तबीयत खराब हुई, मैं मरने के करीब हुआ, मैंने वरसा को वसीयत की जब मुझे दफनाना तो इस सनद के साथ दफनाना। सारे वरसा ने जब इसे दफनाया तो सनद भी साथ ही इसके सीने पर रख दी, इसके साथ उसे दफन कर दिया। इसके वरसा ये कहते हैं कि अगले दिन जब हम दोबारा से अपने बाप की कब्र पर गए तो वो सनद का हिस्सा कब्र के ऊपर पड़ा हुआ था। जब हमने उसको उठाकर देखा तो वही सनद मौजूद थी, लेकिन उसके अंदर एक जुमले का इजाफा हो गया था। वो जुमला ये था कि जो मेरे मौला ने वादा किया था वो सच कर दिखा। अल्लाह, हम उस इमाम के मानने वाले हैं जो हमें सिर्फ दुनिया नहीं देना चाहते, हमें जन्नत तक देना चाहते हैं, जन्नत में आला तरीन मकाम देना चाहते हैं जहां बाएं दाएं हर तरफ पंजतन पाक का एहसास। इससे ज्यादा बड़ी चीज चाहिए? इससे बड़ी और कोई कायनात में चीज है ही नहीं जहां पंजतन पाक की सोबत मिल जाए। जहां पंजतन पाक मिलेंगे वहां दुनिया की हर नेमतें, हर नेमत का आगाज है तो पंजतन पाक की मंशा से। बस अजीज हो, मैंने आज कोशिश की कि इमाम से मैं अपने आप को करीब करूं और हम अपने आप को करीब करें ताकि इमाम आज भी हमसे खुश हों और इंशाअल्लाह जब हमें मौत आए तो इमाम हमसे राजी हो, खुश हो। ऐ मौला, आपकी जिंदगी में हमें एक होर मिलते हैं
और एक हबीब मिलते हैं और आपका रास्ता रोकने के लिए आए थे और हबीब को आपने खुद अपने रास्ते पर बुलाया था। मौला हम आपसे सिर्फ आज के दिन ये दुआ करते हैं कि या आज आप हमें होर बना दीजिए या हबीब की तरह अपने रास्ते पर बुला लीजिए। एक तीसरे सहाबी भी है जिनका आज जिक्र भी किया जाता है। बहुत से कूफे में नाम के मुस्लिम तो थे, लेकिन जो इसमें बा मुसम्मा हो वो सिर्फ मुस्लिम इब्न अकील थे। हबीब और हुर को तो अपने रास्ते पर बुलाया था, लेकिन मुस्लिम वो थे जिनको अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा था। अब हमारी इतनी तो औकात नहीं है, मौला वो तो मुस्लिम थे जो आपके नुमाइंदा बनने के काबिल थे। कौन ऐसा हो सकता है? तमन्ना यही है कि बस उनके कदमों की खाक बन जाए। मुस्लिम इब्न अकील कूफा में मौला की तरफ से वकील बनकर चले। जब कूफा में हजरत मुस्लिम इब्न अकील जा रहे थे तो जरा तसव्वुर फरमाइएगा, अगर आप इमाम जमाना के साथ, बाकी जितने बड़े बड़े सरदार हैं वो सब इमाम जमाना के साथ हैं, और आपको इमाम जमाना ये कहें कि तुम्हें फला जगह पर जाना है, तो फौरन से जहन में सवाल ये आता है कि मौला आपके साथ बड़ा फला आयतुल्लाह भी है, फला मुज्तहिद भी है, फला मौलाई भी है, फला आरिफ भी है, फला आजादार भी है, मुझे क्यों आप भेजना चाहते हैं? क्या मुस्लिम के जहन में सवाल नहीं आएगा? मौला आपके साथ तो अब्बास है, मौला आपके साथ अली अकबर है, मौला आपके साथ औला मोहम्मद है, आपके साथ कासिम है, मुझे क्यों भेजना चाहते हैं? लेकिन एक कुर्बान हो जाए मौला की इताअत पर, जनाब मुस्लिम अकील ने जरा सवाल नहीं किया। जैसे ही हुक्म इमाम आया फौरन सर तस्लीम किया और कूफे की तरफ रवाना हो गए। जनाब मुस्लिम के लिए कदम उठाना मुश्किल हो गया होगा। कूफा पहुंच गए। जब कूफा पहुंचे तो कूफों ने मिलना शुरू किया, मुलाकातें हुई, बैत हुई। बैत करने वालों की तादाद 18,000 तक भी बयान की गई। बैत हो गई, लेकिन फिर यजीद को खत लिखा गया, हालात तब्दील हो रहे हैं, हुसैन के फेवर में जा रहे हैं, किसी ऐसे को भेजो जो हुसैन की आवाज को बंद करे। इब्न जियाद को हुक्म दिया गया कि तुम बसरा के अलावा कूफे के भी वाली बन जाओ। कूफा इब्न जियाद के हवाले कर दिया गया। इब्न जियाद कूफा में आया। जितने मौला के चाहने वाले थे या कत्ल किया गया या जिंदान में डाल दिया गया। जनाब मुख्तार को भी जिंदान में डाल दिया गया। मीसा में तम्मार को शहीद करवा दिया गया। बड़े बड़े असहाब थे जो शहीद हो गए, कितनों के तो नाम भी हमें नहीं मालूम। जनाब मुस्लिम इब्न अकील के लिए दायरा तंग होने लगा। जनाब मुस्लिम मुख्तार के घर से निकलकर हानी इब्न उरवा के घर पर आ गए। हानी को भी इब्न जियाद ने अपने दरबार में बुलाया। गुफ्तगू हुई हानी से, अपने घर में हुसैन का सफीर रखते हो और हमें समझते हो हमें इत्तला नहीं है। हानी ने कहा कि वो मेरे घर पर खुद आए हैं और मैं अपने घर से उनको निकाल नहीं सकता। जो खुद मेहमान बनकर आया उसको मैं कैसे निकाल सकता हूं? मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उसे हमारे हवाले कर दो। इब्न जियाद को हानी इब्न उरवा ने ये दो टोक जवाब दिया, मैं तेरे हवाले मुस्लिम को नहीं कर सकता। हाँ ये कर सकता हूं कि मुस्लिम को मदीने का रास्ता बता दो। बस आजादार, यहां से करबला की दास्तान शुरू हो गई। उसी वक्त इब्न जियाद ने छड़ी उठाई, हानी इब्न उरवा की ने बीनी मुबारक नाक पर मारी, जिससे नाक से खून जारी हो गया, जख्मी हो गए। बहुत लहू लहान कर दिया, हानी को जिंदान में बंद कर दिया। लोगों में खबर फैल गई, हानी इब्न उरवा के भी कबीले वालों में खबर फैल गई कि हानी को शहीद कर दिया गया। इब्न जियाद ने काजी शुरै को बुलाया, क्या तुम जाकर गवाही दो, देखो हानी जिंदा है, जाकर सबको बता दो हानी जिंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ। काजी शुरै इब्न जियाद के प्रेशर में आकर झूठी गवाही दे दी कि हानी को कुछ नहीं हुआ है, जिंदा है, सब खैरियत थे, तो अपने अपने घरों में चले जाओ। जनाब मुस्लिम अकील के लिए दायरा तंग होने लगा। यहां से हानी इब्न उरवा जिंदान में मौजूद थे। अब मुस्लिम का कोई साथी नहीं है। आखिरी अय्याम आ गए। 8 ज़िलहज्जा की तारीख थी। 8 ज़िलहज्जा की रात, यानी 7 ज़िलहज्जा का दिन खत्म हुआ, 8 ज़िलहज्जा की रात मस्जिद कूफा में मुस्लिम अकील ने नमाज पढ़ी। जब नमाज पढ़ के पीछे देखा ना, 18,000 लोगों ने बैत की थी, लेकिन पीछे सिर्फ 10 अफराद थे। मैं कहूंगा ऐ मुस्लिम अकील, अब जब दूसरी नमाज पढ़िएगा ना तो पीछे ना देखिएगा,
क्योंकि आपकी अब पुष्पनाई करने वाला कोई नहीं है, अब मौला आपके पुष्पना है। जनाब मुस्लिम ने अकील ने नमाज मुकम्मल की, मस्जिद कूफा से बाहर तशरीफ लाए। अब सोच रहे हैं मैं किस गली में जाऊं, मेरे लिए तो सारी गलियां अनजान हैं। अगर मदीने की गली होती तो मुझे मालूम होता कि खानदान बनी हाशिम कहां रहता। कभी किसी गली में जाते हैं, कभी किसी गली में जाते हैं, चलते चलते एक जगह पर पहुंचे जहां थक कर बैठे। किसी खातून ने दरवाजा खोला, आवाज दी, तुझे मालूम नहीं है कूफे के हालात तब्दील हो गए हैं, जा अपने घर चला जा। अपने घर क्यों नहीं जाता? जनाब मुस्लिम अकील की आवाज है, जिसका कोई घर ही ना हो। क्या मतलब? तू कौन है? का अना सफीरुल हुसैन, मैं हुसैन इब्ने अली का सफीर मुस्लिम इब्ने अकील हूं। मोमिना थी, कहने लगी आप मुस्लिम इब्ने अकील हैं, आप मेरे सैयद और सरदार हैं। अरे आप ये ना कहे आपका कोई कूफा में घर नहीं है, ये घर आप ही का घर। जनाब मुस्लिम अकील को घर मिल गया, लेकिन घर के अंदर आते ही एक कमरे में चले गए, इबादत करते रहे, वहीं पर रात बसर की। उस मोमिना का एक ऐसा बेटा था कि जो इब्ने जियाद के साथ मिला हुआ था। फर्क देखिएगा, माँ किस अकीदे की है, बेटा किस अकीदे का है। माँ हुसैनी है, बेटा यजीदी है। माँ अपना काम कर रही है, माँ पीछे नहीं हट रही। माँ ने जनाब मुस्लिम अकील को जगह दे दी, लेकिन जब बेटा लौटा देखता है कि माँ बार बार एक कमरे की तरफ जाती है। जरा देखो तो सही माँ माजरा क्या है। जैसे कमरे को खोला तो क्या देखा, जिसको पूरे कूफा में इब्ने जियाद ढूंढ रहा था वो तो मेरे घर में मौजूद है। जाकर फौरन से इब्ने जियाद को खबर दी। इब्ने जियाद ने फौजें भेजी, लश्कर पर लश्कर आए। जैसे ही जनाब मुस्लिम अकील ने देखा कि फौज आना शुरू हुई, फौरन से मोमिना से कहा तो अपने घर के अंदर बैठ, मैं बाहर निकलता हूं। मोमिना ने कहा आप मेरे आका हैं, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगी, आप मेरे घर में रहें, आपकी मैं हिफाजत करूंगी। जनाब मुस्लिम अकील का सुन जुमला सुन सके तो सुनिएगा। फरमाने लगे कि तू एक खातून है, मैं नहीं चाहता कि ये बलवा तेरे घर में आ। मैं कहूंगा मुस्लिम इब्ने अकील, आज आपने कूफे की कनीज का ख्याल रखा है, कल कूफे की शहजादी पे मकला चादर कूफा और शाम में फिर आई जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। जनाब मुस्लिम अकील घर से बाहर निकले, जिहाद किया, बेहतरीन जिहाद किया, ऐसा जिहाद किया कि फिर दोबारा से इब्ने जियाद को खबर दी गई, अरे जरा और लश्कर भेज और फौज को भेज। कहने लगा मैंने तो एक शख्स को गिरफ्तार करने के लिए भेजा है, कितने लोगों की जरूरत है? का जिस एक शख्स को भेजा है तूने गिरफ्तार करने के लिए, वो कूफे का कोई बक्काल थोड़ी है, वो खानदान बनी हाशिम का चश्मो चिराग है, उसके लिए पूरा कूफा भी कम है, भेज लश्कर को भेज। जनाब मुस्लिम अकील के मुकाबले में लोगों की तादाद बढ़ने लगी, लेकिन मुस्लिम इब्ने अकील पीछे ना हटे। मैं कहूंगा जब जनाब मुस्लिम अकील के अंदर ऐसी शुजाअत है कि एक मुस्लिम पूरे कूफा के लिए काफी है, तो क्या एक अब्बास पूरे करबला वालों के लिए काफी ना होंगे? एक अकेले अब्बास पूरे यजीदी लश्कर के लिए काफी ना होंगे? मुस्लिम इब्ने अकील लड़ते रहे, यहां तक कि दगा के जरिए गड़ा खोद कर मुस्लिम इब्ने अकील को पीछे धकेला और वहां घड़े में डाल दिया। जैसे घड़े में मुस्लिम इब्ने अकील का गिरना था, किसी ने तलवारें मारी, किसी ने नेज़े चुभोए, किसी ने पत्थर मारे। हत्तार बाबी मेंबर ये कहते हैं कि घरों की छतों से यजीदी औरतों ने गरम गरम पानी मुस्लिम सलाम हो जनाब मुस्लिम अकील पर, ऐसे लहू लहान हो गए, शहीद होने के करीब हो गए, लेकिन हिम्मतें कम न हुई थी। जब घड़े से बाहर निकाला गया, इब्ने जियाद के दरबार में लाया गया, जख्मों से चिकनाचूर हो गए थे, लेकिन इब्ने जियाद के दरबार में आए तो सीना तला हुआ था। आकर खड़े हो गए, आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे थे। किसी दरबारी ने आवाज दी, तू क्या आदाब दरबारी भूल गया है? इब्ने जियाद तेरा अमीर है, उसे सलाम कर। मुस्लिम ने अकील ने कहा मालियल अमीर सिवल हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं है सिवाय हुसैन के, मैं सिर्फ अपने आका को सलाम करूंगा। इब्ने जियाद से बड़ी गुफ्तगू हुई,
और वो गुफ्तगू पढ़ने के काबिल है। मैं अपने नौजवानों से कहूंगा किताब लुहूफ को जरूर पढ़िएगा। सैयद इब्न ताऊस की किताब है, उसका उर्दू ज़बान में भी तर्जुमा हो चुका है। क्या मुकालमा हुआ है इब्न ज़ियाद का मुस्लिम अकील के साथ। सिर्फ एक जुमला उसमें से अर्ज करना चाहता हूँ। इब्न ज़ियाद ने कहा कि मुस्लिम तुम कूफे के अंदर फितना बर्पा करने के लिए आए थे, फसाद बर्पा करने के लिए आए थे। मुस्लिम ने बेसाख्ता कहा फितना तो तूने और तेरे बाप ने बर्पा किया है, फितना तो यजीद और यजीद के बाप ने बर्पा किया है। और हर चीज का तू बतू जवाब देना शुरू किया। यहाँ तक कि इब्न ज़ियाद आजिज हो गया, कहने लगा इसे दारुल इमारा पर लेकर जाओ, इसके सर को तन से जुदा करो, सर को कूफे के अंदर घुमाना शुरू करो। दारुल इमारा पर मुस्लिम ने अकील आ गए। एक मर्तबा मक्के की राहों का रुख किया, फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आका आप पर मेरा सलाम हो। ये कहने के बाद अपनी गर्दन झुकाई, किसी मलून ने तलवार चलाई, सर को अपने हाथों में लिया, बाकी बदन को जमीन पर फेंक दिया। मैं कहूंगा जनाब मुस्लिम, जैसी किस्मत आपने पाई वैसी करबला में गरीब ज़हरा ने भी पाई। आपके सर को भी दिल से जुदा किया गया, मौला के सर को भी दिल से जुदा किया गया, मगर इतना तो फर्क था ना, जब मौला के सर को दिल से जुदा किया गया था तो बदन तीरों से छन्नी हो चुका था। 3 दिन की प्यास थी। जब आपका बदन कूफे की जमीन पर गिरा, आप बहुत गरीब थे, आप पर कोई मातम करने वाला ना था, लेकिन इतना फर्क जरूर था, जब आपके सर को और आपके धड़ को कूफा में घुमाया जा रहा था तो आपकी बेटी आपको देखने वाली नहीं थी। करबला में वो मजलूमा अपने बाबा के कटे सर को नोके नेज़ा पर देखती है, कभी अपने बाबा की पामाल लाश के करीब जाकर बैठ जाती है। ए मेरे बाबा बता, क्या तू ही मेरा बाप हुसैन जो मुझे अपने सीने पर सुलाया?